سیریس بھی ہے اور یہ ٹاپک اہم بھی ہے. جی بالکل. تو آج کل جو ماحول ہے پورے پاکستان کے پوری دنیا کے کووڈ کے بعد تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے, اکانومی بہت زیادہ خراب ہے. تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ملک میں جو اس وقت ریئل اسٹیٹ میں جو ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ہم اس کو کہتے ہیں, لیکن یہ ہماری بیسک نیڈ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں روٹی, کپڑا اور مکان. تو یہ حالات کے مطابق سے زیادہ ضرورت کے مطابق چل رہا ہے. تو اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمارا اینڈ یوزر نکل رہا ہے. انویسٹر کے پاس تو پہلے پیسے ہی نہیں ہے. اگر وہ انویسٹر آئے گا بھی تو وہ اپنے پراپر ایک حالات کے مطابق آئے گا, تب جا کے وہ انویسٹ کرے گا. تو میرے خیال میں اینڈ یوزر ابھی نکلا ہے جس کی ضرورت ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. تو عامر زیب خان صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے, آپ کا بھی ماشاءاللہ سے اس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں آپ, تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں کنسٹرکشن پہ کوئی بات کر سکوں. جی. میں پہلے بیسک سے بات کروں گا کنسٹرکشن کی, کہ جو کنسٹرکشن تھی وہ انیشلی سٹارٹ ہوئی جب انسان نے کنسٹرکشن سٹارٹ کی. تو کنسٹرکشن درختوں کے پتوں, درختوں کی شاخوں اور اینیمل ہائٹ کے ساتھ کی گئی. پھر میڈیول ٹائمز آئے تو میڈیول ٹائمز میں کنسٹرکشن کا رخ تھوڑا سا چینج ہوا, اور اس میں کنسٹرکشن جو تھی وہ مٹی, پتھر اور ٹمبر یعنی لکڑی کے ساتھ کی جاتی تھی. اب الحمدللہ لیٹسٹ ٹرینڈز اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ کنسٹرکشن جو ہے وہ اینٹ, بلاک, کنکریٹ, اسٹیل اور پلاسٹک کے ساتھ کی جا رہی ہے, جس کے اندر سیفٹی سٹینڈرڈز, کلائمیٹ کنٹرولز, ایئر پریشرز اور روشنی اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے. الحمدللہ آپ نے جو بات کی میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ اس وقت تقریباً پوری دنیا لاک ڈاؤن میں. چائنا 80% انڈسٹری اپنی کلوز کر چکا ہے. یو کے از ان کمپلیٹ شٹ ڈاؤن, صرف اس کے اسینشلز چل رہے ہیں ابھی تک اسینشلز. امریکہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ پاکستان واحد ملک ہے which is not in lock down. اور اس وقت اگر پاکستان کے اندر کسی بزنس میں سب سے زیادہ بوسٹ ہے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں. بالکل ماشاءاللہ سے. آصف صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا یہ جو ریئل اسٹیٹ کا؟ بہت شکریہ. میں سن بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا, بیسک سے شروع کیا انہوں نے, لیکن میں اس سے تھوڑا سا آگے شروع کروں گا. گھر اور مکان میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب بھی کوئی نئی بہو آتی ہے تو وہ کہتی ہے, گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ آتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے مجھے ایک نیا مکان چاہیے, علیحدہ کی چاہیے. اور اسی طرح ہر ماں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے میرے بچے میری زندگی میں اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو جائیں. تو یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. انسان کا پہلا خیال جب شور کی بات آتا ہے تو اس کا آتا ہے روٹی, کپڑا اور مکان. بالکل ایسے کہ بارشوں میں بھلے چھت بھی ٹپکے لیکن ایک مکان ہو مگر ہمارا ہو. ہاں, کیا بات کیا, کیا بات. تو اس کے لیے ہمارے ہاں بہت سے تجربے کیے گئے, ایکسپیرینس کیے گئے. کبھی 3.5 مرلے, کبھی 2.5 مرلے. مختلف حکومتوں نے اس کے اندر ایک بھونڈے پن کا مظاہرہ کیا, اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. آج بھی اگر ان اسکیموں کی آپ دیکھیں, کنسٹرکشن دیکھتے ہو, وہ کھنڈرات ملیں گے آپ کو, وہاں پہ کسی بھی کوئی عمل نہیں ہوگا. لیکن ان دوستوں کی وجہ سے جو کہ اس وقت اس فیلڈ کے اندر بڑے ماسٹر ہیں, میں یہ بھی بات ان کو ایڈ کرنا چاہوں گا, سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک لیونگ سٹینڈرڈ دیا, بھلے وہ آفس ہو بھلے وہ گھر ہو, ایک سٹائل دیا ان کو کہ کس طرح رہا جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا تھا, 2 کمرے, ایک برآمدہ, ایک کچن, ایک باتھ, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس زمین پہ ہم نے کیسے بنانا ہے. تو ان لوگوں نے اس قدر, آپ مارکیٹ میں جائیں یا کمپیوٹر پہ جائیں تو آپ کو اتنے نقشے مل جائیں گے, 3 مرلہ گھر کے, 5 مرلہ گھر کے, اسی طرح ہائی رائز بلڈنگ کے. جیسے کہ آپ سے ذکر کیا یا نہیں کیا اپنا عامر صاحب نے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو بنا رہے ہیں, یہ اسلام آباد کی 3rd لارجسٹ بلڈنگ ہے. بالکل. اگر یہ ہائی رائز بلڈنگز پہ بات کر لی جائے افضل صاحب, یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے ان کا, تو یہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ اچھا کارآمد اور ترقی یافتہ ملک کے لیے, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اچھا ثابت ہوگا؟ ایک آبادی ہوتی ہے ورٹیکل اور ایک ہوتی ہے ہاریزونٹلی. تو گورنمنٹ کا یہ بالکل اچھا ہے کہ آپ اس کو اوپر کی طرف جائیں جیسے پوری دنیا جا رہی ہے, لیکن ہمارے پاس وہ بیسکس نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی کے لیے بیسکس نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے. اگر آپ سنگاپور کو یا دبئی کو دیکھتے تو ان کی ایک پلاننگ ہے. آپ بغیر پلاننگ کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں.
ایمرجنسی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو آپ کیسے اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہے یہ بڑا اچھا ڈیسیجن کہ آپ اوپر کی طرف جائیں, زمینیں آپ کی وہ ہو جائیں گی, کم ہو جائیں گی, پاپولیشن سیگمنٹ ایک ہی جگہ پہ آ جاتا ہے, اچھا ڈیسیجن ہے, کاسٹ کم ہو جاتی ہے. ایک گھر کی کاسٹ اگر 10 ملین ہے تو اس میں آپ کا وہی گھر اتنی سپیس میں آپ کو 3 to 4 ملین میں وہ بن جاتا ہے, تو ایک اچھا ڈیسیجن ہے. بالکل اچھا ڈیسیجن ہے, لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب اس میں کچھ ہماری حفاظتی اقدامات کو بھی مد نظر رکھا جائے. ابھی جو سی ڈی اے نے یا سپریم کورٹ نے جو بین کیا ہے 2-3 سائٹس کو اسلام آباد میں بین کیا ہے, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی وجوہات ہی یہی تھی کہ 15 to 20 فٹ اسٹریٹ ہے اور اس میں 20 سٹوریز کی بلڈنگز بن رہی ہیں. اگر ایمرجنسی ہو جاتی, کچھ ہو جاتا ہے, پھر آپ کیسے اس کو ریسکیو کیسے کریں گے؟ پھر سی ڈی اے ابھی اس قابل ہی نہیں ہوا, نہ ہی اس کے پاس وہ اکوپمنٹ ہے کہ وہ اگر اس طرح کے ہنگامی حالات کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی سوسائٹی بھی اس کی اجازت دیتی ہے تو سوسائٹی پہلے یہ بھی دیکھے نا کہ میرے پاس اس کے لیے کیا کچھ ہے, اکوپمنٹ ہے یا نہیں ہے, ایمرجنسی کے لیے میں کیا کروں گا. پھر میں نے وہ اگر اوپر جانا ہے تو میں نے لیفٹ رائٹ کتنا چھوڑا ہے, ساری چیزوں کو مد ساتھ نظر لگی ہوئی رکھنا پڑتا ہے. بلڈنگز, تو اوپر جانے کا پھر مطلب فوت ہو جاتا ہے نا. بالکل, یہ اس پہ جو ہے وہ ہم عامر زیب صاحب آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے. جی, حکومت نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ورٹیکل کنسٹرکشن کا. بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو جائے گی. دیکھیں جی کہ جب ہم اینٹ بناتے ہیں تو ہم بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ جو اینٹوں کا بٹا جس کو کلن کہا جاتا ہے, اس میں سب سے پہلے جو ہماری کلٹیویشن سوائل کی ایک لیئر ہے اس کو ہم ڈیمیج کر رہے ہیں. جب ہم اینٹ بناتے ہیں تو وہ سوائل جب آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ فصل نہیں لگ سکتی اور وہ ایک کھڈے کا شکل اختیار کر لیتا ہے. ورٹیکل کنسٹرکشن سے لائک وائز اینٹوں کے بٹے کی جو میں نے بات کی, تو اس کے اندر اب گورنمنٹ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ انہوں نے جو ہے زگ زیگ کلنس دے دی ہیں, جس کے اندر پولوشن بھی کم کر دیا گیا اور 85% کاربن کو بھی ریڈیوس کر دیا گیا. ورٹیکل جانے سے جس طرح میں نے اینٹوں کے بٹے کی اس لیے ریفرنس دیا کہ ہمارے پاس آلریڈی کلٹیویشن سپیس کم ہوتی جا رہی ہے, سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, سیکٹرز ڈفرنٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ نے ساری کنسٹرکشن ہاریزونٹل کر دی تو ہمیں اپنے جو کھانے کے پروڈکٹس ہیں وہ ہمیں باہر سے امپورٹ کروانے پڑ جائیں گے. بجائے اس کے پہلے پاکستان از آلریڈی ایکسپورٹنگ ویٹ اینڈ ساری چیزیں ایون افغانستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے جس کے اندر ہم ورٹیکل کنسٹرکشن میں جاتے ہیں اور اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ کے ایکسپینسز بھی بڑے کم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو افضل صاحب, یہ بھی سننے میں آیا ہے, بلکہ آپ لوگوں کو تو اس بات کا پتہ ہوگا کہ جو بھی بلیک منی ہے اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں استعمال کی جا رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کا سوال, اس پہ جواب نہیں لیا جائے گا کہ کہاں سے آیا, کیوں خرچ کیا, اور یہ میرے خیال سے 2023 تک جو ہے وہ انویسٹ کریں گے تو پھر نہیں پوچھا جائے گا. تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ذرا پلیز بتائیے گا. ٹھیک ہے, اگر پہلے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ بلیک منی کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اچھا, اٹ مین کہ میں پھر جو بھی ہے لوگوں نے پیسے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کسی طرح تو باہر آ رہا ہے, تھوڑے سے باہر نکال لیں. مطلب مر جائے گا, وہ پڑے رہے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں پڑے ہوئے. نہیں, دیکھیں اس کا تو ایک وہ ہے نا کہ اگر اس طرح اسکیم دیتے رہے تو آپ مجھے موٹیویٹ کریں کہ میں بلیک منی کی طرف جاؤں, پھر مجھے 2 سال بعد آپ ایک اور اپرچونٹی دیں گے, پھر اس میں میں دوبارہ لے کے آؤں گا. میرے خیال سے وہ پیچھے سے پکڑا جاتا ہے, وہ جو پہلے کر لیا انہوں نے کر لیا. نہیں, بلیک منی کا آپ کبھی بھی راستہ نہیں روک سکتے, کالے اس کا دھن کا کبھی راستہ روک نہیں سکتے. اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کی جو اوپر سے جو آمدن جس کو کہتے ہیں وہ آپ کہیں پہ بھی کاؤنٹیبل نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں کی. انہوں نے کس شیپ میں رکھی ہوئی ہے آپ اس کو نکال نہیں سکتے, وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسکیم ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی یہ وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر دینی چاہیے. سر آپ پلیز اسمائل دے رہے ہیں تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, لازمی آپ بتائیں. جی, میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پہ یہ بات کروں گا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دی, خان صاحب کی گورنمنٹ نے. یہ دنیا کی بہترین ایمنسٹی اسکیم ہے. صرف پاکستان کی ایمنسٹی بہترین نہیں ہے یا ایشیا کی نہیں ہے, دنیا کی بہترین ایمنسٹی اسکیم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اٹ از اے ٹیکس فری ایمنسٹی اسکیم. اس سے پہلے زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں ایمنسٹی اسکیم آئی, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ایمنسٹی اسکیم آئی, لیکن ان ایمنسٹی اسکیم میں ایمنسٹی لینے والے کو ٹیکس دینا پڑتا تھا.
इस एमनेस्टी स्कीम में एमनेस्टी लेने वाले को टैक्स बहुत कम रेशो कर दिया गया। टैक्स पहले हम देते थे, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की उसके ऊपर और प्रॉफिट दोनों का कंपाउंड हम टैक्स देते थे। अब टैक्स आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं है, 15% ऑफ द प्रॉफिट पे है, जो कि ना होने के बराबर है। अगर मैं एज अ बिल्डर बात करूं तो मैंने जो मेरा रेजिडेंशियल, जिस तरह मैं 26 स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हूं B17 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, विंसन मॉल एंड रेजिडेंशियल, उसके अंदर 5 फ्लोर्स कमर्शियल है। अब उसके ऊपर मैंने 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट टैक्स देना है। मैं बेच रहा हूँ 40,500 का, तो वो तो उसके सामने मुकाबले में कुछ है ही नहीं जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। प्लस रेजिडेंशियल जो ऊपर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं या होटल सर्विस अपार्टमेंट्स में बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने देना है 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। तो हमारा हक बनता है कि जब गवर्नमेंट हमें इतना ग्रो करने का मौका दे रही है तो हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स दे के सपोर्ट कर सकें। इसके अंदर क्लाइंट्स के लिए जो है जी, बेसिकली इट इज़ नॉट ब्लैक मनी, जस्ट नॉट द ब्लैक मनी, इट इज़ अनडॉक्यूमेंटेड मनी। एक ब्लैक मनी होती है। सर ये इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये मुझे बताएं। जी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इसके ऊपर। देखिए, अनडॉक्यूमेंटेड मनी वो पैसा है। अच्छा सर, ये सॉरी, एक बड़ा मजे का एक टॉपिक है, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन से वापस आते हैं और फिर यहीं से बात को शुरू करेंगे। जी प्लीज छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पे, और मजीद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सर, टॉपिक आप पे छोड़ गए थे, उसका जवाब आपसे लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो सुल्तान साहब से गाना सुन लेते हैं। तो सुल्तान साहब आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? जी, मैं एक फोक गाना है वो सुना रहा हूँ आपको जी, आपकी नाज़रीन को। जी प्लीज। चिड़ियां बोल दिया दुनिया तू सोनिया है, वेखी ते सोने ढोले दिया, दिल दीवाना तेरी अखियां दा सजन होया वदे, दिल दीवाना तेरी अखियां दा सजन होया वदे, ना किसी होर ते बस तेरे उते मोया वदे। क्या बात है। दिल दीवाना तेरी अखियां दा सजन होया वदे। ऐसा तू नसीबां वाला यार सोनिया, हर कोई मंगे तेरा प्यार सोनिया। ऐसा तू नसीबां वाला यार सोनिया, हर कोई मंगे तेरा प्यार सोनिया। तेरे ख्यालां विच हर कोई
सजन खोया वदे दिल दीवाना तेरी अखियां दा सजन होया वदे दिल दीवाना तेरी अखियां दा सजन होया वदे राती मसूद के ख्वाब वेखिए चेहरा एक बड़ा लाजवाब वेखिए राती मसूद के ख्वाब वेखिए चेहरा एक बड़ा लाजवाब वेखिए यार मेरा मेरी बांदे उते सोया वदा दिल दीवाना तेरी अखियां दा सजन होया वदे ना किसी हो रिते बस तेरे उते मोया वदे दिल दीवाना तेरी अखियां दा सजन होया वदे जबरदस्त, क्या खूब है माशाल्लाह से, बड़ा मजा आया सीरियसली, बहुत मजे की और आवाज आपकी बहुत खूबसूरत है सुल्तान साहब। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, पाकिस्तान में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पे आज हम बात कर रहे हैं और आमिर ज़ैद खान साहब आप पे हम छोड़ गए थे टॉपिक को, वहीं से शुरुआत करेंगे। जी मैं बात कर रहा था अनडॉक्यूमेंटेड। जी बिल्कुल, अनडॉक्यूमेंटेड मनी बेसिकली इसको आप कोई भी नाम दे दें, इसको आप ग्रे मनी कह लें, ब्लैक मनी कह लें, पिंक मनी कह सकते हैं, कहने को तो कह सकते हैं। अच्छा ब्राइट कलर्स में क्यों नहीं होती सर, ये मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ ज्यादा मर्दों के साथ ये बड़ी प्यारी बात, कलर्स देगी ब्लैक और ग्रे में सही है। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है जी, ये वो पैसा है जिसके ऊपर बेसिकली हमने जिस तरीके से भी कमाया और हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स नहीं दिया। हमारा बेसिक्स पे हम जाएं तो हमारा दीन हमें ये कहता है कि आपके जो असासे हैं, जो आपकी इनकम है, उस पे आपने 2.5% ज़कात देनी है। बिल्कुल, जो ज़कात नहीं देता वो बखील, और जो ज़कात से ज़्यादा देता है उसको अल्लाह ताला गनी का बेशक सर, बेशक। तो हमें टैक्स देना चाहिए, ये हम अपने दीन से चीज़ देखें। हमने गवर्नमेंट को, ज़रूरी नहीं कि वो पीटीआई या कोई भी गवर्नमेंट है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज हमने अपने पाकिस्तान को ग्रो करना है, पाकिस्तान को डेवलप करना है, तो हमें टैक्स देना चाहिए। इसके फ़वाद बहुत सारे हैं जी। आप सबसे पहले तो ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना बूम है कि सरिया जो है पिछले 4 महीने में उसने जाके 1,42,000 रुपये टन को टच किया, फिर अब नीचे आ रहा है बिकॉज कोविड की वजह से बॉर्डर्स क्लोज्ड है, जिसकी वजह से बिलेट नहीं आ रहा। डिस्पाइट दैट इतना हाईएस्ट रेट पे सरिया गया, बट सरिया का शॉर्टफॉल है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना बूम है कि उसका शॉर्टफॉल है। फिर दूसरा जो हमारे क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एमएसटी स्कीम में विंसन मॉल एंड रेजिडेंशियल अप्रूव कराया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। उसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त कोई भी हो, नैब और एफपीआर, वो मेरे क्लाइंट से ये नहीं पूछेंगे कि ये पैसा आप कहाँ से लाए, तो आपने बेसिकली उसका पैसा भी प्रोवाइड कर दिया और उसको टैक्स सिस्टम के अंदर भी, मिनिमल टैक्स सिस्टम के अंदर आप उसको ले आए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। कंस्ट्रक्शन के बूम के बारे में मैंने जो बात की, उसमें इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है कि मेरा सिर्फ जो मार्केटिंग का ऑफिस है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मैंने हायर किया था 30 पीपल, बिल्डर्स ऑफिस में 15 लोग हैं, और जब मेरे 26 स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हूँ तो 1000 से ऊपर लोगों का अल्लाह ताला बेशक तो मैं एक बिल्डर और उसके एक की बात कर रहे हैं अभी, तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस स्कीम के बड़े फायदे हैं, मतलब इसमें रोजगार में भी जो है लोगों को मौके फराम हो रहे हैं, उनको मिल रहा है और जॉब्स मिल रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा साइन है हमारे मुल्क के लिए, माशाल्लाह से। अच्छा, तो आपसे आसिफ साहब जानना चाहेंगे इसी बात पे, ये जो ग्रे ब्लैक कलर्स की बात कर रहे हैं सर, इस पे क्या आपकी राय है? बड़ी अच्छी बात है, अफसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप ब्लैक मनी को फरोग देंगे तो वो मुल्क को मिलत की काफ़ी नुकसान होती है, लेकिन उसको सेकंड किया मेरे साहब ने कि ये अनडॉक्यूमेंट मनी है, अनडॉक्यूमेंट ये करेंसी है। असमें होता क्या है, हमारा चूँकि तबका बहुत सा अनपढ़ है, एक तो वैसे हो गया ना, अनपढ़ होने की वजह से हमारे जितने आप अरबों का कारोबार करें
राजा बाजार जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं लाहौर की, कराची की, वहाँ पे अनडॉक्यूमेंट ये वर्किंग सारी होती है। लोगों को पता ही नहीं कि हमने कैसे करना। वैसे वो लेजर तैयार कर लेते हैं, लेकिन एज पर FBR, एज पर इनकम टैक्स वो उनसे तैयार नहीं होते। तो वो कहते हैं चल यार कराची के हिसाब ने मैं कमाया ना पैसा मेरा ही है। इस चक्कर में वो अनडॉक्यूमेंट मनी जो है वो बहुत ज़्यादा फरोग पाती है। लेकिन उसको निकालना भी किसी तरीके से, जैसे खुद मेरे साहब ने बताया कि कितने एक प्रोजेक्ट पे इतने लोग अगर हायर हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट आई है इनकी, मनी सर्कुलेशन आई है, इतना सामान, तो ये हमारे यहाँ खुश आइन साइन है और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा दूर तक जाएगा, यहाँ तक नहीं। और दूसरी बात जो इन्होंने हाईराइज बिल्डिंग की बात की कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छे जो मॉडल्स हैं वो है सिंगापुर और दुबई। दुबई के अंदर आपको पता है पूरी दुनिया के उसी शनाख्त बन गया, खलीफा बुर्ज जो है वो उनकी शनाख्त बन गया, ठीक है। और इस तरह जो सब दुनिया का कहते हैं डेवलप कंट्री, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटी और स्मार्ट कंट्री, वो सिंगापुर है। हालांकि न्यूयॉर्क है, UK है बाकी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी है वो सिंगापुर है। तो हमें हाई राइज बिल्डिंग की तरफ इसलिए जाना चाहिए कि इससे एक तो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज बहुत कम होते हैं। 4 रोड होंगे, 10 रोड होंगे, वो तो नहीं होगा कि पूरी हवेली खुली हुई है किसी भी जगह से कोई भाग के आ जाएगा। एक तो सिक्योरिटी इश्यूज बड़े अच्छे उसमें हो जाते हैं सिक्योरिटी में। दूसरी बात है कि इसके अंदर हमें ये फायदा होता है कि बिल्डिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जैसा कि ये भी तीसरा मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारी रोड्स पे प्रेशर बड़ा कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? नीचे कमर्शियल, जैसे इन्होंने कहा कि 5 हमारे कमर्शियल हैं, ठीक है। अब जो लोग ऊपर से आएंगे तो ज्यादातर लोग उधर ही जॉब कर लेंगे, उधर से 16 पे ऑफिसेज भी होंगे, नीचे ऑफिस भी होंगे। अच्छा, तो फिर ऊपर सारा वो सिस्टम वहाँ पे बहुत से लोग उस रोड पे आने के लिए नहीं, रोड्स पे यानी कि ट्रैफिक आप उसके हवाले से बात करें कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, मतलब वक्त के साथ साथ तो बढ़ेगी लेकिन उस रेशो से कम हो जाएगी, क्योंकि अक्सर बंदे अपने ही प्लाजा से, अपने ही शॉपिंग मॉल से, अपने ही हाई राइज बिल्डिंग से खरीदेंगे। और मुझे खुद याद है कि हमारे बड़े बड़े कहा करते थे, अमेरिका के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं होता बाहर शहर कैसा है, ऊपर से आते हैं उधर ही जॉब करते हैं, उधर से सादा सल लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, वहां से बाहर निकल मतलब बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो इस तरह और बहुत से इसी तरह जैसे मेजर साहब ने कहा ज़री ज़मीन आपकी बहुत बच जाती है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ज़रख़ीज़ ज़मीन का फुकदान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि दरख्त लगाएं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 10 मिलियन बर्ड। सर अगर दरख्त लगाएं तो अभी बिल्डिंग्स ऐसी बना रहे हैं कि बाहर नहीं निकलेंगे दरख्त और पौधे कौन खाना पीना कर लेंगे, वो ऊपर फिर अपने कमरों में जाके सो जाएंगे। कैसे होगी ये तो नेगेटिविटी की तरफ वीकेंड होता है ना, वीकेंड होता है ना, बस सिर्फ वीकेंड में बाहर निकलना है, संडे वाले सेकंड करूँ उसमें मेरे सब मेरा ज्यादा बेहतर राय देंगे कि आजकल हमारे यहाँ ग्रीन बिल्डिंग भी बनी है, जिनके पौधे ऐसी किस्म के वो उसी बिल्डिंग के साथ साथ व्यवस्थित होते हैं, उसी बिल्डिंग के साथ। सर ये मैंने देखा था किसी कंट्री में, बड़ा पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुके हैं। अच्छा सर कहाँ पे ये जरा मुझे इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में किसी इस्लामाबाद के अंदर है, जिसमें ये कौन से एरिया में? इस्लामाबाद की इसी अच्छा, मतलब स्टार्ट हो चुका है। मैं अब उसकी प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि GT रोड के अंदर भी इसको 2-3 बिल्डिंग ऐसी हैं, गीगा माल के इर्द गिर्द वहाँ पे भी इस तरह की बिल्डिंग। क्या बात है सर, ये तो फिर बड़ा खूबसूरती में इजाफा। ग्रीनरी और दरख्त देखने के लिए नहीं है, ये पोल्यूशन को फ्री करते हैं, ऑक्सीजन के वो उसके और भी फायदे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है। बिलियन ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसको अच्छे और साफ तरीके से किया जाए तो दरख्त, जैसे अभी ओजोन लेयर है उसका जो मसला आ रहा है, पूरी दुनिया इस पे एनवायरनमेंट के ऊपर लगी हुई है। तो अभी हमारा नाम भी तो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से माशाल्लाह से लेकिन इसके नाम बोलने से नहीं है ना, करने से होता है कि हम सब अपना अपना पर, लेकिन आसिफ साहब तो हमें बाहर ही निकलने देंगे, वो तो क्या बस ऊपर से आए शॉपिंग करें, खाना खाएं, जॉब करें, फिर घर में चले जाए। खैर ये तो बात मजाक की। तो सर बात करेंगे नया पाकिस्तान में, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लोगों को जो है वो घर मिलेंगे, बैंक से कर्जे मिलेंगे, लोन मिलेगा, घर बनाएंगे, तो ये मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। वैसे अभी तक प्लॉट स्लॉट दिए गए, क्या हुआ इसके बारे में भी हमें प्लीज बताइएगा। अब हम तो जो है आम शहरी हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। जी, इस पे देखिए दो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अच्छे काम किए। एक तो ये है कि एमनेस्टी स्कीम दे दी जी, टैक्स फ्री कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड सेकंड जो है वो इन्होंने नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दे दिया। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो है ना
पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी एक बन गई है जो इन सब मामलों को देखेगी, अच्छे तरीके से उनको बेहतर से बेहतर करने बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल या अनवर साहब हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं इस पे और लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। वो बजाते खुद डायरेक्टर पाकिस्तान जो इनकी फेडरेशन ऑफ डायरेक्टर है उनके भी नुमाइंदे उसमें लिए गए हैं, जिसमें इनके सरदार ताहिर साहब हैं, एजाज कौसर साहब हैं, और इसी तरह हर सूबे से एक एक नुमाइंदा उनका लिया गया। तो अफजल साहब इस पे वर्किंग हो रही है, इस पे आपके भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं बिजनेस में, होता है एक प्रॉफिट जी और एक होती है सैलरी। बिल्कुल। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉफिट वालों ने बनाना है और इसको बनाने वाले सैलरी वाले हैं। अब ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट या एक बंदा मुलाजिम हो और वो इतने बड़े प्रोजेक्ट का फिर उसका पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। प्रोजेक्ट उन्होंने अच्छा दे दिया है लेकिन पॉलिसी नहीं है। और दूसरा, मेरी जो इस शोबे में लोगों से, बैंकर से, सबके साथ, हम इसी शोबे में से, इसी जगह से हैं, तो गवर्नमेंट दे रही है 35 to 60 लाख, अच्छा, 5 मरले के घर का। 5 मरले के घर का। अगर पिंडी इस्लामाबाद को देखे जाए, इस्लामाबाद में स्पेशली, मेरा नहीं ख्याल के 4 मिलियन से कम प्लॉट की कीमत है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि 35 लाख का घर मैं 40 लाख के प्लॉट के ऊपर कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसके लिए रिमोट एरियाज हो या जो डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, या आर्मी के जो स्कीमें हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दे, तब जाके बिल्डर आके उसके ऊपर घर बनाए और बैंक उसको फाइनेंस करे, तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन 35 लाख में सिंगल स्टोरी घर पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इसमें कोई स्पेसिफाइड की गई है जगहें, प्लॉटिंग, कुछ इस तरह से? देखिए, किसी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को खुश करने के लिए जगह दे दी, अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। बैंकर्स आ गए, बैंकर ने चले 5% पे या 6% पे हाँ तो कर दी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि बैंकर्स 7 या 8% पे इंटरेस्ट पे पैसा लेता है और वो 5% पे अगले को कैसे देता है, वो भी फिर 15 साल 20 साल से शुरू हो जाएगा। तो ये बैंकिंग सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के मुताबिक शायद गवर्नमेंट ने उनको मजबूर किया या कुछ किया, उन्होंने हाँ में हाँ तो मिला ली। अच्छा। लेकिन उस तरह कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो ये हमारे इलाके में भी उन्होंने बताया था ना कि तो आपने एप्लीकेशन वगैरह दी है, कुछ किया? नहीं अभी तक तो नहीं। वो कहा था ना उधर हमारा मतलब ख्वाब दिखाया था, उसकी ताबीर कोई भी नहीं दिखाते थे टीवी पे, ये दिखाते कि जो सबसे पहले शुरू जो है ना वहाँ से होगा घर बनने। नहीं तो ये आपने तो अभी जो बात की है, तो क्या ये कल नहीं मिलेंगे कि मतलब जो सर अब्दुल साहब बात कर रहा जी जी जी, ये अच्छा काम दूसरा गवर्नमेंट ने किया कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का रुतबा दे दिया, जिसकी वजह से आपको बैंक्स जो है वो लोन्स भी दें। बहुत बड़ी बात है। अब नया पाकिस्तान को अगर मुझे को पूछे तो सक्सेसफुल बनाने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी लैंड्स हैं उनको लीज किया जाए। वो लैंड्स जो कि अनकल्टिवेटेड हैं, जिसके ऊपर काश्त नहीं की जा सकती, जो शहरों के करीब हैं और वहाँ पे पानी का वाटर टेबल ठीक है, तो ऐसी जगह को बिल्डर्स के हवाले किया जाए। तो उसमें हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं कि हम वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन करें, बिकॉज लैंड तो आपको फ्री में आ गया, तो आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लग रहा है। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड बेसिकली टू सपोर्ट पाकिस्तान, तो उसमें बिल्डर्स जो है वो अपना रोल जरूर प्ले करें, तो फिर ही ये मेरे ख्याल से कुछ ये फिजिबल हो जाता है। नहीं, ये आशा ये बड़ी कलेक्टिव कोशिश है, कावश है, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी जो जैसे अफसर साहब कह रहे हैं कुछ खदशात, वो लाजिम बात है, चूंकि अभी ये प्रोजेक्ट शुरू है आस्ता आस्ता, जैसे नहीं अभी तो देखे ना सर 2-2.5 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। मैं इसी पे ये बात करना चाह रहा हूँ, जैसे आमिर साहब ने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेजर आमिर साहब ने इस तमाम उसका कंक्लूजन ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दी जाए, लीज की जाए, उसके बाद आएगा बिल्डर्स, उसके बाद आएगा बैंक, तो तब जाके वो एंड यूजर को वो दे सकता है। जमीन की कॉस्ट जब तक फ्री नहीं होगी तब तक ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अफसर साहब इसमें देखें, आप एक कनाल लेते हैं और अगर आप उस पर 26 बिल्डिंगें बनाते हैं, तो आपने एक कनाल लेके 26 कनाल उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक इसका फायदा देखिए। गवर्नमेंट कुछ हद तक तो करेगी आपकी तरफ प्रपोजल है, लेकिन हर को तो गवर्नमेंट जमीन नहीं दे सकती। वो तो आपने अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे इसको मैनेज करना है, थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाके काम करना है, शहर के अंदर काम करना है। तो ये 27 लाख से लेके जो गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, वो 27 लाख से लेके 55 और 60 तक जा रही है। डिफरेंट उसकी फेज है। सर आप घर दे रहे मीडियाकर को, बल्कि लो अगर आप उसको शहर से 25 किलोमीटर दूर ले जाएं, तो उसका रोजगार है शहर के साथ, आना जाना, ट्रेवलिंग, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है,
तो ये बात तो बिल्कुल मेरे भी माइंड में आ रही थी। थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा अफसर साहब से। देखिए जब तक शहर फैलेंगे ना तब तक ये पोल्यूशन मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे शहरों के अंदर। ये बात बिल्कुल, ये इसको मजीद इसी टॉपिक पे रहेंगे और इसी को सर मजीद आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ट्रैवल कर सकता है, काम इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता जब। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में जंगल में घर बना देंगे तो फिर वो कैसे जॉब करेंगे? आपने सीखा वक्त के साथ जंगल आबादियों में बनते जाते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ इलाकों की बात की, मैं खुद पिंडी की बात करूं, कभी हमने गुलिस्तान कॉलोनी जाना था तो हम कहते वो अयूब बाकी सर आज वो क्या, आज तो रवात हमारे साथ शामिल हो गया, इधर से वाघ गार्डन हमारे साथ शामिल हो गया। ठीक, शहर फैलते हैं लेकिन इनका पॉइंट बड़ा अच्छा है और मैं आपके प्लेटफॉर्म से हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि जब तक सब्सिडी सहूलतें नहीं देंगे, जब तक मेडिकल नहीं देंगे, जब तक इस तरह बुनियादी सहूलतें नहीं देंगे तो ये मनसूबे अच्छी तरह कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान इन तवज्जो देंगे और इन शहरों को जब फैलेंगे तो उन पर सहूलतें भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद तो हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। तो इस पे अगर बात की जाए ऑफिसेज पे भी, तो घरों पे हमने बात कर ली, जो कि ऑफिसेज भी सर जो है ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, रेंट भी और सारी चीजें भी। तो इस पे भी बताएं कि फिर कैसे बिजनेस किया जा सकता है इतनी महंगी जगह पे? ये मेरा सस्ते और आसान किस्म में देंगे अपने ऑफिस। नहीं सर, तो इसीलिए पूछ रहे सर, हमें कोई अच्छा सा वो बताएंगे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो है ना वो हम जॉब्स भी दे रहे हैं और चीजों को वो लेके चल रहे हैं आगे। जी, ऑफिस का तो ये है, देखें जी कि हमने अगर मैं ब्लू एरिया की बात करूं तो यहाँ पे ऑफिस 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट से काफ़ी ऊपर है अगर सेल की बात की जाए। जो इस्लामाबाद के करीब तरीन सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह B17 में मैं काम कर रहा हूँ जी, अभी रिंग रोड बागला एवेन्यू अप्रूव हो चुका है। B17 इस्लामाबाद से सिर्फ 8 किलोमीटर की मुसाफत पे है, लेकिन वहाँ पे इस वक्त ऑफिस का जो रेट है वो सिर्फ 12,000 रुपया पर स्क्वायर फुट है। अच्छा, जो कि ना होने के बराबर बिल्कुल। तो जब आप इतनी कॉस्ट बचा रहे हैं तो उससे फिर ट्रैवलिंग इफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं करती। तो जो नई सोसाइटीज आ रही हैं उनको एनकरेज करना चाहिए, CDA को भी, RDA, चूँकि हमारा पिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक है तो मैं उसकी बात करूँगा कि इन सोसाइटीज़ को एनकरेज करें कि वो अपनी डेवलपमेंट्स को एक्सपीडाइट करें, बिकॉज आप सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को ब्लू एरिया के अंदर अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एयरपोर्ट आपका B17, टॉप सिटी, मुमताज सिटी, 18 जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ वहाँ पे बन रही हैं उनके करीब चला गया। तो हमें ऑफिस का कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पे रखनी चाहिए, बिकॉज आपका CPEC हब जो हाकला का इंटरचेंज है वो B17 एयरपोर्ट से आपस में 5 मिनट की मुसाफत में, तो कोयटा के डिस्टेंस भी आपका 5 घंटे से रिड्यूस हो जाता है। एंड जो हमारे सेक्टर्स हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मुख्तलिफ एरियाज है लाइक फाटा, KP, हज़ारा डिवीजन, कोस्तान, GB और कश्मीर। तो ये जो एयरपोर्ट वाला एरिया है B17 या बाकी सोसाइटीज़ हो गई, ये एन रूट इनके सबसे पहला आता है। तो हमें ऑफिस की, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर फुकतान भी है, तो हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन उस एरिया में करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे जो है ना वो अफजल साहब आपकी भी राय जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल जैसे सर ने बात की, आने वाला जो दौर है, ये जो CPEC रूट है और उसका जो पहला जंक्शन आता है ना वो इस्लामाबाद आता है, कॉर्पोरेट लेवल पे आ रहा है सारा कुछ, एक्सपेंस हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 2 या 3 साल में ये मसला हल हो जाएगा। जैसे ये जो आप देखें जोन 2 में, जोन 5 में, फिर DHAs में या बैरिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और हाई राइज हो रही है, ऑफिस अभी भी अगर आप रिमोट थोड़ा सा इस्लामाबाद से 2 या 5 या 10 किलोमीटर बाहर जाएं तो वहाँ पे रेंट बहुत कम है, लेकिन अगर आप ब्लू एरिया को ही फोकस करें तो ब्लू एरिया में तो डेफिनेटली रेंट होंगे। आसिफ साहब से ये जानना चाहेंगे कि सर ये जो मंसूबे हैं
اس میں ہم جو یہ ٹیکس بھی لے رہے ہیں لائک ملک کو اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی قرضے کے حوالے سے اگر بات نہیں وہ بھی ہے، لیکن اس ملک کی خوشحالی کی ٹیکس بہت ضروری ہے. جیسے کہ میرے ساتھ بات کی تو جس طرح ٹیکس پے ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، وہ تو ایک بہت خوشائن بات ہے. وہ چونکہ جیسے میں نے ریٹ بتائی، ریشو بتائی کہ 250 میں اس پہ دے رہا ہوں، 100 150 اس پہ دے رہا ہوں، تو یہ ایک ہیوی اماؤنٹ بنتی ہے. تو یہ قرضے کی کمی کی طرف یعنی کہ ہم جا رہے ہیں. جب قرضے کم ہوں گے اس پہ سود بھی ہمیں کم دینا پڑے گا، تو ہم اپنی معیشت کی طرف بہتر ہو جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے جو ہمارے پہ اس پر تلوار کی لٹک رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ وہ جون تک انشاءاللہ ہم اس پہ نکل جائیں گے، لیکن صرف اس انڈسٹری کی وجہ سے. یہ میرے صاحب نے کہا کہ اس کو انڈسٹری یہ میرے خیال سے آئندہ آنے والے جو 1-2 سال ہے نا وہ یہ اس انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس انڈسٹری کا مستقبل بڑا تابناک قسم کا ہے، روشن ہے، لیکن قرضے اس انڈسٹری کے لیے نہیں لیے جا رہے نا. مسئلہ یہ ہے یہ تو قرضے اتار رہی ہے انڈسٹری. ہاں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتارے جا رہے ہیں. نہیں، یہ انڈسٹریز کو اتارنے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. یہ انڈسٹری 45 to 50 انڈسٹریز کو چلا رہے ہیں. ہم مدر انڈسٹری ہو گئی نا، جو ریل اسٹیٹ مدر انڈسٹری ہو گئی ہے، کنسٹرکشن مدر انڈسٹری ہو گئی ہے. 45 انڈسٹریز کو یہ چلا رہی ہے، لیکن قرضے ہمارے لیے نہیں لیے جا رہے نا. نہ ہمیں اس کے مطابق اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں کوئی پیکیجز دیے جا رہے ہیں. اگر آپ ایک بات کریں کہ آپ نے 2 سال یا 3 سال میں پچھلی گورنمنٹ سے سٹارٹ کر کے ابھی تک 4 سال میں آپ اس انڈسٹری کو -100 پہ لے کے گئے ہیں. اگر آپ نے یہ ریلیف دے بھی دیا ہے، یہ ٹیکسز کا ریلیف دے دیا ہے، تو یہ آپ نے اس سے 10% اوپر لے کے آئے ہیں. 90% تو ابھی بھی ہم دسے ہوئے ہیں ان شیپ آف ٹیکسز. اور جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں، جو انویسٹر موٹیویٹ ہوتا ہے. ابھی بلیک منی کو تو آپ نکال رہے ہیں، یہ تو کوئی چھوٹے کچھ آتے ہیں یا نہیں آتے، ٹھیک ہے، بلیک منی ہے یا انڈاکومنٹڈ منی ہے، لیکن جو ایکچوئل اور ٹرو انویسٹر ہے اس کو تو آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے ہیں، اس کے اوپر آپ نے بائر کے اوپر ٹیکس لگائے، سیلر کے اوپر ٹیکس لگائے. پھر جو ادارہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے اس نے اپنا ٹیکس علیحدہ ٹیکس نہیں، اس نے ایکسپینس لگائے ہوئے ہیں. ٹیکسز ڈیفینیٹلی ہم تو مائنس سے اوپر آ رہے ہیں. اچھا یہ کہنا چاہوں گا کہ افسر صاحب جیسے ہمارے چیمبر مختلف چیمبرز ہیں، وہ بھی تو اپنا کردار ادا کریں. وہ ہر سال دیتے ہوتے ہیں اپنی تجاویز، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو وہ کوئی اپنا ایسا رول پلے کریں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو بیٹھے ہیں سننے والے، وہ بیوروکریسی کیا ہے؟ بیوروکریسی کیا ہے؟ ایک سول سرونٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ بزنس مین کو لے کے آئیں، چاہے آپ کا فائنانس منسٹر ہو تو بزنس مین ہو، وہاں پہ آپ چیمبر آف کامرس میں چلے بزنس مین ہے، لیکن وہ کس کو سنانے جا رہے ہوتے ہیں؟ ایف بی آر میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ سول سرونٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ 18 سے لے کر 20 گریڈ کا ہوتا ہے، تو اس کو ہم جا کے سنا رہے ہوتے ہیں. پروفٹ اور سیلری کا جو فرق کیا ہے؟ پروفٹ ہم پروفٹ ہوتے ہیں، وہ سیلری ہوتے ہیں، اور وہ باؤنڈیڈ ہوتے ہیں. ان کے پاس ڈیسیجن میکر نہیں ہوتے. اگر ان کے ہوتا بھی ہے تو ان کے پاس اتنی ہرڈلز ہوتی ہیں، ان کو ایک انڈسٹری کا پین پتہ ہی نہیں ہے، ان کو ایک بزنس مین کا پین پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات کی ہے. تو آپ سر بالکل چپ بیٹھے ہوئے. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، میرے صاحب اس پلیٹ فارم سے حکومت کو یہ تجاویز دیں کہ ٹیکس کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، ٹیکس اصلاحات کیسے کی جا سکتی ہیں، اور ٹیکس کو بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. جی میجر صاحب. بیسیکلی سر میں اس کی تائید کروں گا کہ ہمیں حکومت کو ٹیکس دینا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اگر میں 40,000 روپے پر اسکوائر فٹ بچا رہا ہوں اور میری کاسٹ آف کنسٹرکشن آ رہی ہے 3500، تو میں بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہوں. تو اس میں اگر حکومت مجھے کہہ رہی ہے کہ میجر صاحب آپ جو آلموسٹ 37,000 روپیز آپ بچت لے کر جا رہے ہیں، اس میں سے مجھے صرف 250 روپیہ دیتے ہیں، تو اس سے میرے سر پہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہم ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ چلے گی. اٹ از سمپل. ایک لے مین کے لیے میں ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی. اب میں یہ کہوں کہ میں گاڑی میں پیٹرول کم ڈالوں اور وہ مجھے مسافت زیادہ کر کے دے، دیٹ از ناٹ پاسبل. لیکن میں صاحب آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بجلی پہ ٹیکس دے رہے ہیں، گیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیلیفون پہ دے رہے ہیں، روڈ پہ ٹیکس دے رہے ہیں. کچھ ہمارا رونا سنیں، ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں پہلے ٹیکس دیں. انڈسٹری آپ نے چلانی ہے، آپ ٹیکس کی ریشو ریڈیوس کر دیں. ٹیکس آپ لیں، ہر بندے سے لیں. میں کہتا ہوں کہ جس کی 10,000 بھی ہے نا سیلری، اس سے بھی لیں، لیکن آپ ریشو کم کر دیں. ملٹیپلیکیشن جتنی کریں گے اتنی آپ کے چوری کے راستے یہ بھی دوں گا. ریشو بھی کم کریں اور کوانٹٹی آف نمبر آف ٹیکس بھی کم کریں. سر ریشو ٹیکس ہم کا گورنمنٹ کے مجبور ہے کہ وہ کم کر نہیں سکتی، بیکاز آپ نے ورلڈ بینک سے IMF سے لونز لیے ہوئے ہیں. تو آپ کو بیسیکلی جو
प्राइसिंग है, किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर लें, चाहे वो चूंकि हर चीज़ फ्यूल से रिलेटेड है ऐसे ही, तो उसको IMF और वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है, तो इसमें गवर्नमेंट के हाथ तो बंधे हुए हैं, वो कर कुछ सकते नहीं। तो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मिनिमम टैक्स गवर्नमेंट ने हम पे दिया हुआ है, हमें वो पे करना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट की सपोर्ट कर सकें और अपने इस पाकिस्तान को कर्जे से आज़ाद करें। बहरहाल आपका मैसेज रिकॉर्ड करेंगे। एक हमारे जो प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, तो अफजल साहब आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नए पाकिस्तान में चले घरों के जो ख्वाब दिखाए हैं उसके बारे में बता दें। पूरे हो सकते हैं अगर आपका जो आपने पॉलिसी दी है उसके पीछे आपके मोटिव्स क्या है, नीयत क्या है। इन्नमा मालूम बिल नियत है, ठीक है, नियतों का दारोमदार, अमल का दारोमदार नियत पे है। लेकिन आपने अगर एक पॉलिसी दी है पार्टी डेकोरम के लिए, आवाम को पिछले लोगों की तरह बेवकूफ बनाने के लिए, फिर तो ये नहीं बन सकता। अगर आपकी नीयत ठीक है तो ये बन जाएगा। और आवाम को भी मेरा एक ही पैगाम है कि आप मेहनत करें, गवर्नमेंट के या किसी भी फर्द या इदारे के आसरे पे ना रहें। हमारा मसला ये है कि हम अगर बींगे हम रियल स्टेट मार्केटर हैं, हम बेगर नहीं हैं। वजह ये कि हम मेहनत करते हैं अपने लाइफ स्टाइल, अपने लिविंग को चेंज करने के लिए। तो मेरी पूरे पाकिस्तान के अवाम से यही दरख्वास्त है कि वो भी मेहनत करें, प्रॉपर डायरेक्शन में करें। और प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो बिजनेस है, जो कुछ है बिजनेस है। पैगंबरों का पेशा है, 100 में से 90% जो है ना ये बिजनेस में है, 10% अदर्स में से है। अपनी डायरेक्शन ठीक करें। जी आमिर ज़ैद साहब आप बताएं। जी ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि जब पाकिस्तान की पार्टीशन हो रही थी इंडिया के साथ, सब कॉन्टिनेंट की, तो उस वक्त एबटाबाद में एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम है अल-यासी मस्जिद, बड़ी मशहूर मस्जिद है, वहाँ पे पानी की चश्मे। वो मस्जिद एक रात में बनी थी। उस वक्त ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी और ना कोई और चीज़ थी। और वो मस्जिद गवर्नमेंट या हुकूमत वक्त या उस वक्त जिन लोगों के पास इक़्तिदार था उन्होंने नहीं बनाई, ये आवाम ने बनाई। गवर्नमेंट ने अगर 50 लाख घर गए हैं तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अगर चाइना 8 दिनों में 40,000 बेड का हॉस्पिटल बना सकता है तो आई थिंक वी कैन ऑल्सो डू इट। गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद ऑल दी बिल्डर्स ऑफ पाकिस्तान। अब नया पाकिस्तान में जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ आबाद को इनवाइट किया गया। बेसिकली आबाद के थोड़े से मेंबर्स हैं, बिल्डर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले। तो जब आप नया पाकिस्तान में सारे बिल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लेंगे तो आपको बेहतर तजवीज़ भी मिल जाएगी, अच्छे बिल्डर्स भी मिल जाएंगे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट की जो 2.25 साल रह गए इसके अंदर ये पॉसिबल है। इंशाल्लाह। जी आसिफ साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर यही कहूँगा कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है, गेम चेंजर है। इस मुल्क के कर्जे भी उतर सकते हैं, इस मुल्क के अंदर एक विजन रहायश भी मिल सकता है और इस विजन के अंदर मनी सर्कुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। और इंशाल्लाह इन्हीं बातों पे एक मुल्क तरक्की करता है। और ये दो जैसे मैंने कहा कि अगर ऑन बोर्ड लिया जाए, ये ऐसे लोग हैं, इसी पाकिस्तान की धरती के लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर दिए हैं, बड़ी इतनी अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो इनको ज़रूर ऑन बोर्ड लिया जाए। और स्पेशली मेजर जनरल अनवर साहब से मैं कहूँगा कि इनको ज़रूर एक दिन मीटिंग कॉल करें जस्ट फॉर डिनर गेट टुगेदर। बड़ी अच्छी बात की, बड़े अच्छे पैगाम दिए। और लास्ट पे जो है वो कमर सुल्तान साहब हमें गाना सुनाएंगे और इसी के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि जो ख्वाब दिखाए हैं प्लीज़ उसको जो है वो ताबीर भी उसकी दी जाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपनी आशा राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। फोटू ने तेरे हर पेज उत्ते लग गए, अखियां दे तीर साडे दिल विच वज गए। फोटू ने तेरे हर पेज उत्ते लग गए, अखियां दे तीर साडे दिल विच वज गए। गल सुने बाप किए नारे नीरौले तेरे टिक टाक ते, नीरौले तेरे टिक टाक ते। दे देख की निक्की जी सानू भी रिक्वेस्ट नी, दिल दे मोबाइल च मैं कर लाया जस्ट नी। दे देख की निक्की जी सानू भी रिक्वेस्ट नी, दिल दे मोबाइल च मैं कर लाया जस्ट नी। असा भी दिल ते
ਤੇ ਹਾਰੇ ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ, ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ। ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਸਮਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਸਮਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਤੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਜੁਬਾਰੇ ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ, ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਛੰਡ ਕੇ ਵਗਾਵੇਂ ਨੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨੀ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਛੰਡ ਕੇ ਵਗਾਵੇਂ ਨੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ, ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ। ਫੋਟੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਪ ਕੀਏ ਨਾਰੇ ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ, ਨੀ ਰੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का।